ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਸੁਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿਤ ਅਤੁਲੈ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਮਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ, ਸਿਫਤੋ ਸਨਾ ਪਟਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੀ ਭੱਟ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਲ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ
जिन्ने भी विकार ने उन्होंने खत्म करने वास्ते आई है कि मनुखी मन पवित्र होए। ते अपनी मत नाल कोई अपना मन कोई टिका नहीं सकता। जाको मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, कबहू कको पावै आत्म प्रगास को। बथेरिया ने इत्थे जतन किया, बड़े जोगी जति मुनि बहुत आए, पर कबहू कको पावै दा मतलब कदी किसी ने कुछ प्राप्त किया होएगा, बिरले ने। और यही जिक्र सतगुरु जी की बाणी दे विच बारंबार आया, अछल छलाई नह छलै, नह घाऊ कटारा कर सकै, श्री राग महला पहला। कि जिहड़ी अछल माया है ये मनुख की ताकत दे नाल नहीं काबू की जा सकती, मनुखी मन इनू काबू नहीं कर सकता। नह घाऊ कटारा कर सकै, ज्यों साहिब राखै त्यों रहै, इस लोभी का जियो टल पलै, बिन तेल दीवा क्यों जलै। गल तो यह है कि अंदर जिहड़ा अंधकार है, इस अंधकार नूं मिटाउण वास्ते किहड़े प्रकाश का चानण किया जाए। ते महाराज गुरु नानक साहब जी बख्शिश करते हैं, पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी इत तन पाई है, सच बूझण आण जलाई है, यह तेल दीवा इउं जलै, कर चानण साहिब ताऊ मिलै। कि पोथी साहब दे विच जिहड़े बचन ने ना, जिहड़ी ये बाणी तुसी पढ़ रहे हो, तुसी सरवण कर रहे हो, करदे हो, असी सारे इस बाणी राही ही सतगुर सच्चे पातशाह जी दे नाल अपने मन नूं जोड़ सकते हैं। ते सतगुरु गुरु रामदास जी की सिफत दे विच भट्ट जी ये बख्शिश करते हैं, गुरु गुर गुर कर हो। वो दुनिया के लोगों गुरु जपो, असी जपीए गुरु नूं, की होएगा जे गुरु जपांगे तो साडे अंदर एक टिका पैदा होएगा, अज्ञानता का हनेरा मिटेगा तो गुरु का ज्ञान प्रगट होएगा। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुरु तो बिना नहीं मुक्ति। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन, अगन कटे सब तेरे। गुर नैण बैण गुर गुर कर हो, तो इनू क्यों क्या गुर सत कव नल कह। गुरु सत है कवि कहते हैं, भट्ट जी कहते हैं, क्योंकि गुरु शब्द दे सूरमे ने, शब्द सुपन ने। ਇਹਦਾ मतलब है सूरा गुरु है जिहड़ा शब्द का तीर चलाउंदा है। जिस गुरु कोल शब्द का बाण है, जिस बाण दे लगिया हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। कबीर सतगुर सूरमे, कहते गुरु सूरमा है, इनू ही ते भट्ट जी कहते कि गुर कर सत विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन। शब्द का सूरा है गुरु, शब्द का सोमा है गुरु। जिवें धरती तो चश्मा फटदा है पानी का, तो पानी का अंत नहीं होता, इवें गुरु विचों शब्द का चश्मा फुटदा है, तो उस शब्द का कोई अंत नहीं है। गुर कर शब्द सपुन, अगन कटे सब तेरे, ये शब्द सारे पाप कट्टण वाला है। ते गुर नैण, अखां दे विच गुरु, बैण बचना विच गुरु, गुर गुर कर हो, रोम रोम विच गुरु। इन्ना क गुरु करिए कि सब दिनस रैण देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर धराई, धन गुरु रामदास जी। इन्ना गुरु करिए कि गुर नैण बैण गुर गुर कर हो, गुर सत कव नल कह। कवि जी कहते करो गुरु करन नाल, ये ना पूछो की होएगा की नहीं होएगा। अज गुरु करोगे तो गुरु का शब्द दसेगा कि ये की असर पाएगा। जिस तरह निंदियां कीतियां बंदे नूं ये सोझी नहीं होंदी कि मैं पाप कर रहा, पर निंदा दी मैल बंदे नूं बाद विच तंग करदी है। ये तिलकण वाली मैल है, इत्थे तिलक जांदे वड्डे वड्डे। इसी तरह निंदा करन वालियां नूं ये नहीं पता होंदी कि निंदा भली किसै की, ना ही मनमुख मुग्ध करन। मूँह काले तिन निंदका नरके घोर पवन, ये जीवन दे सारे तप तेज नूं खत्म कर दिया। इवें गुरु के सिखो जी गुरु गुरु करांगे तो निंदा आपे ही कटनी शुरू हो जाएगी। पर इस करके भट्ट जी कहते हैं कि जिन गुरु ना देखियो नह कियो, ते अक्यथ संसार में। जिन्हां ने गुरु दे दीदार नहीं कीते, जिन्हां ने गुरु वल मुख नहीं कीता, जिन्हां ने ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है। कि इस रूप भाव इस मार्ग ते नहीं चले जिस मार्ग ते तुरिया सुख मिलना सी। जिन्हों महाराज जी कहते गुरसिख मीत चलो
ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉੱਚ ਰਹਿ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਕੀ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇੰਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਿਅਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਕਿਅਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ, ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਦੋਨੋਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਾ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਪੈਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਚਲੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਾਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਭੂ ਕੋ ਕੂ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ, ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਕੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਤ ਜਾਤ ਕਬ ਲਾਸ ਕੋ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਕੂ ਜੋਗੀ ਜਤੀ
सिद्ध साधिक अनेक तप, जटा जूट भेख किए आत्म प्रकाश को। इस प्राप्ति दे लई किथे तक कौन कौन गया। 103 सतगुर सुख पाए, पर यह दात सच्चे सतगुर कोल ही है। ये तो गुरु के हाथ विच है, ये होर किसी कोल नहीं मिलेगी। 103 सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। ये बढ़ियाई गुरु कोल गुरु राही मिली है। ये जोत भावें एक तो लैके धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तक वरती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यही हुक्म किया कि दुनिया के लोगों सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जे सिख बन के सिखी धार ली ना, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। परतख हर भाव निस्तारा करके हरि दे दीदार। गुरु गुर गुर कर हो गुरु हर पाई है। ये सीधा विचकार कोई होर नहीं। तो जिन्हें उन्होंने ही प्राप्त कर लिया, सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ, सब कुछ मिल जाएगा। फिर सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरु कौन है? उदत गुर गहर गंभीर बेअंत, हर नाम नग हीर मन, मिलत लिव लाइए। उदत कहते हैं सागर नूं, बहुत वड्डा समुंदर जिहदा कोई अंत पारावार नहीं है, जिहदे किनारे दी असीमता नूं कोई नहीं मिण सकदा, जिहदी लहरां नूं कोई नहीं गिण सकदा, ते जिहदी डुंगियाई नूं कोई नहीं माप सकदा। ऐसा गुरु है उदत गुर। इस करके तू ठाकरो बैरागरो मैं जेही घन चेरी राम, तू सागरो रतनागरो हूं सार ना जाना तेरी राम। कौन तुहाडी सार जान सकदा? सी बेशुमार अथाह हो, अगनत हो, कोई गिण नहीं सकदा, कोई मिण नहीं सकदा। उदत गुर गहर गंभीर, इन्नी गंभीरता ते इन्नी गहरता, इन्नी डुंगियाई ते इन्नी विशालता गुरु कोल है। बहुत विशालता है। ये गुरु तत्ती तवी ते बैठ के भी रहंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्बानी। सतगुरु सच्चे पातशाह 4 जंगां लड़ के भी 52 राजियां नूं फिर बरी कराउंदे है। फिर सतगुरु जी उन्होंने अपने अपने ठिकाने ते पहुंचाउंदे है। ते जे पुछया जाए कि सच्चे पातशाह इन्होंने ते हमले कीते तुहाडे ते, महाराज कहंदे फुल दा सुभाव खुशबू देना ही हुंदा है, भावें वो पापी दे हथ विच आ जाए ते भावें वो पुनी दे हथ विच आ जाए। गुरु दा सुभाव समुंदर वर्गा है, वो ते सब दा उद्धार करदा है। सतगुरु मेरा बेहमोताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव। देव कहते विशाल चानण, जिहदा अंत नहीं पाया जा सकता, बहुत विशाल। देव का अर्थ कोशकार आसमान भी करते हैं कि जिहदा अंत ही नहीं है। उगवणों तह आथवणों, उगण तो लैके सूरज दे ते डुब्बण तक, कहते एडी एक विशालता की भी जे गल करिए तां भी गुरु अगे वो घट है। गुरु इन्ना विशाल है। उदत गुर गहर गंभीर बेअंत, बेअंत है। गुरु के गुण कोई गिण के आखदे दसे जा सकते हैं? ते भट्ट जी कहते गुरु अमरदास जी दे जां गुरु जोत के गुण गिणन की जे जरूरत कोई करे, कोई जरूरत करे, तां भी नहीं गिण सकता। घन हर बूंद बसो रूमावल, कुसम बसंत गणत ना आवे। रव सस किरण उधर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै, कब जन भल उन्ह जो गावै। इथों तक कोई कहे जी मैं बरसात दियां कणियां गिण लवां, कोई गिण नहीं सकता। जे कोई गिण ले, कोई कहे जी मैं धरती ते उगण वाले सारे फुल गिण ला, गिण नहीं सकता, कोई गिण ले। कोई कहे मैं समुंदर दी डुंगियाई मिण लवां, मैं गंगा दियां लहरां गिण लवां, मैं सूरज चंद्रमा दियां किरणां, कोई गिण नहीं सकता। पर जे कोई गिण भी लए, पर भी एक गल अंत दी शिखर दी यह है, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। कोई बयान नहीं कर सकता। उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर, बेअंत है, बेअंत
ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁੜ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਗ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗ ਹੀਰ ਮਣ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਦਾ ਨਗ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਜੋਹਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਨਗ ਉਹਦੀ ਤਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਗ, ਇਹ ਹੀਰ, ਇਹ ਮਣੀ, ਇਹ ਮਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਸੁਪਾਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਤ, ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ,
जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। फिर वो गुरु का सिख दुनिया के लोगों के मूँह वाल नहीं तकदा कि लोकी की कह रहे ने, वो गुरु के सुभाख्या शब्द वाल तकदा है। तो ज्यों ज्यों शब्द विच गुण कमाना शुरू करता है, फिर वो परवाह नहीं करता दुनिया के लोग की कहते हैं। पर सच ये है, सिख की कमाई करके पहले जिहड़े लोग कबोल बोलते सन, उही लोगों की जुबान गुरु बदल के रख दिंदा, गुरु के सिख बदल के रख दिंदे। इस करके जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। ये गुण नहीं गवाउंदा जिहड़ा गुरु कोलों मिलिया। किहड़ा गुण? हर नाम नग हीर मण मिलत लिव लाई है। जे ये गुण मिल जान तो फिर लिव लगती है प्रभु के चरणों के विच। जे गुण ही नहीं चंगे जीवन दे विच, सारे काम करी जाते, नहीं जी गुरु घर भी आ गए तो बाहर भी। भले हो जिस तरह एक पहलवान घंटा डेढ़ घंटा कसरत करता, वो उन्होंने पहलवान नहीं बनाउंदी। ये कसरत उन्होंने पहलवान नहीं बनाउंदी, बाकी वो 23 घंटे का डिसिपलिन उन्होंने पहलवान बनाउंदी। इसी तरह गुरु के दर ते असीं घंटा डेढ़ घंटा आके बह सकते हैं वध तो वध। ये सानू सिख नहीं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना सकती, बल्कि एक घंटा जो सिखिया उन्होंने 23 घंटे कमाउणा अपने जीवन विच, वो सानू असल दे विच गुरु की सिक्ख्या गुरु के गुण नूं वसाउण दी ताकीद कर सकती है। जो इत्थों सिखिया सारे दिन उन्होंने कमाउणा, तां असीं वाक वजन टमक भेरियां मल लथे लैंदे फेरियां ने ते 5 जुआन मैं गुरथापी दिती कंड जीओ। तां ये पहलवानी सिखी जा सकती है गुरु कोलों उन्हां 5 विकारां नाल लड़न दी। ये वाला डिसिपलिन ये जरूरी है, ये जरूरी है गुरु कोल आके बैठ के गुरु दी विचार गुरु दे शब्द नूं मन वसाउणा। पर जो सुनिया सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्नै। मन मन जाए बह के, जा सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल भन्ने। तो फिर बाकी 23 घंटे या बाकी 22 या बाकी 20 या 10 घंटे ही जीवन दे उपदेश जे कीता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का भाणा मनिया, भाणा मनना तो जीवन विच है ना। जो जीवन विच कारगुजारी असी करनी है वो गुरु दे भाणे विच रह के करनी है, गुरु दी रजा गुरु दे शब्द दे गुणां विच रहिंदियां करनी है। जे गुण गवाते तो फिर असी डिग जाएंगे। इस दे सप सीढ़ी दी खेड़ है, जिथे माया नागड़ी ने डंग मारिया फिर उत्थे जीरो ते। ये सच्ची बड़ी बड़ी बिखम घालना है। यह चाल निराली गुरमुखी, ये चाल कोई आम चाल नहीं है। गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। किथे माया डंग मारेगी ये नहीं पता। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना, यह है साडे सारे जीवन की कारगुजारी, सारे दिन की कारगुजारी। यह असल दे विच सानू राम संत मैं भेद किछ नाही, एक जन कही मैं लाख करोड़ी, लखां करोड़ां चो कोई एक होएगा जिहड़ा इस अवस्था तक पहुंचेगा। लाख 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 कई कोरै को है ऐसो बिचारे, कोई लखां 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 करोड़ां विचों कोई एक है बख्शिया होया जिहदे अंदर ये मणियां ये गुण ये श्रृंगार जिन्हें ये कमा लिया गुरु दे गुणां दा, बेशकीमती गुणां दा। कंठे माला जिहवा राम, सस नाम लै लै करूं सलाम। ये नहीं दर्शन परसन सरसन हरसन, गुरु दे दीदार अंदर खेड़ा पैदा करन, बाणी खेड़ा पैदा करे। रंग रंगी करतारी रे खिनरम गुरगम हरदम नहजम, हर कंठ नानक उरहारी रे। ये श्रृंगार बनाया गल दे विच। ये है, इनू महाराज जी कहते हैं, इनू बाणी कहती है, इनू भट्ट जी कहते नाम नग हीर मण मिलत लिव लाई है। जे मिल जाए तो फिर अपना गुण ना गवावे, ये विच लिव लाउंदा है सिख। तो फिर महाराज जी कहते हैं, बाणी कहती है गुरु होर की बख्शिश करते हैं। गुरु केड़ी बख्शिश करते हैं? गुरु इथों तक बख्शिश करते हैं कि गुरु का सिख गुरु द्वारा होए सोजी पाए सी, इत्थे मौजूद है। एत द्वारा धोए हच्छा होए सी,
पर इत्थे भी नाल है, ते जिह जे काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावै। ते जे गुरु चेते है गुरु के सिख दे हिरदे विच, ते जिथे जिथे काज कर रहा गुरु का सिख, ते गुरु मेरा संग सदा है नाल। फिर गुरु नाल है, फिर है हजूर, वो सदा ही हजूर है। कत दूर बतावो, क्यों कहने असी दूर है, दुंदर बांधो सुंदर पावो। हा मन ते बनना है बस। इनू ही महाराज जी कहते, इनू ही गुरु ग्रंथ साहब जी सानू समझाउंदे, मिलत लिव लाई है। ये लिव दी खेड है, ये ते सारे ध्यान दी खेड है। आनी ले कागद काटी ले गुड़ी आकाश मध्य भरमी अले, पंच जनासियों बात बतौआ चीत सोडोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कलाचित मांडी अले। ये है जिस तरह एक जोहारी नूं घर बैठिया भी पता है, भावें महीना वो अपनी हट्टी ते ना जाए, उन्होंने ये पता केड़ा मण, केड़ा मोती, केड़ा हीरा, केड़ा बेशकीमती पत्थर मेरी हट्टी मेरी तिजोरी च पिया है, भावें जिथे मर्जी होए। सुनियारे नूं पता है, जैसे कनक कलाचित मांडी अले। इवें गुरु के सिख नूं पता है कि गुरु दे विच केड़े केड़े गुण ने, केड़े माणक मोती गुरु ने मैनू दिते है, किथे किथे केड़े वरतने हैं। सहज गुण किथे वरतना है, संतोख दा गुण किथे वरतना है, अपनी जिम्मेवारियां दा गुण किथे वरतना है। ये विखम खेड। धर्म दे मार्ग ते ना तुरीए तो फिर कोई परवाह नहीं, जे तुर पे तो फिर ते वाट हमारी खरी उडीनी खनियों तिखी बहुत पई नी, उस ऊपर है मार्ग मेरा। ये मार्ग है। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना खनियों तिखी, वालोह निकी एत मार्ग जाना। फिर भट्ट जी अगे बख्शिश कर दे, फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस, मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर ध्याइयै। फुन, फुन दे कई अर्थ ने। फुन दा खिन भी है, फिर भी है, कि बारंबार भी है, मुड़ मुड़ के भी है। कि फुन गुरु परमल सरस, गुरु कोल कैसे गुण ने। जिस तरह किसी ने खुशबू लाई होए ना, इत्र फलीला। परमल का अर्थ है, भाई कान सिंह नाभा लिखते ने कि खुशबूदार चीज़ों नूं सारियां नूं रला के बनाई हुई एक बहुत बहुत विलक्षण खुशबू, बहुत सारिया चीज़ों नूं रला के। ते इत्र जड़ियां परफ्यूम्स ने जिहड़े, इनू भी परमल आख्या जाता है। कहते जिस तरह मनुख अपने पिंडे ते खुशबू लगाउंदा है, इत्र लाउंदा है, ते जिथे वो पहुंचदा है, उहदे पहुंचण तो पहले ही वो खुशबू आबो हवा आबो मंडल नूं सारी खुशनुमा कर देंदी है, चंगी खुशबू। बस महाराज कहंदे गुरु के सिख कोल गुरु दे गुण वाली खुशबू है। जिथे वो बैठदा है उथे वो आबो हवा आबो मंडल नूं खुशबू नुमा कर देंदा है। ये है शौक है सो कीजै, तन मनो दीजै, ऐसा परमल लाई है। जो प्रभु ने हुक्म करता ना, अपना तन मन भेंट करके, ये खुशबू गुणा दी, जिन्हों क्या सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलिए। इनू क्या गुणा का होवे वासला कड़वास लई जाए। जे इत्र दी खुशबू, इत्र दी डब्बी नूं खोलिया जाए तो इत्र दी खुशबू हवा दे विच फैल जाती है। ते जद गुरसिख गुरमुख कोई बोलदा है तो उहदे बोलियां ही नाम बाणी उहदे मुख तो निकलिया ही सारी आबो हवा दे विच गुरु दे ज्ञान दी खुशबू फैल जाती है। इनू ही महाराज जी कहते ये है खुशबू जीवन की। जिथे जाए बहीए भला कहीए, झूल अमृत पीजै। ये गुरु के गुणा की खुशबू है। फुन गुरु परमल सरस, ये गुणा की खुशबू का सोमा है। मुश्क वालों हर कोई भजदा है। जिथे पानी खड़ जाएगा, जिथे गंदगी हो जाएगी, उथे मुश्क है। इस करके सबर ए सुआओ, जे तू बंदा दृढ़ कर है, बद थीवै दरियाओ टुट ना थी भी वाहड़ा।
जे गुरु के गुणां नूं कमाउणा शुरू कर देगा, सबर रखना शुरू करेगा, गुरु कृपा करेगा। अज नहीं तो कल। ये सबर का मार्ग है, ये चिट्ठे पैण वाला मार्ग नहीं है। इत्थे ते रंग लागत 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 है। इत्थे ते सहज पकदा है। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। सबर ए सवाओ जे तू बंदा दृढ़ करे, बंदा बन के दृढ़ कर इनू। वध थी वह दरियाओ, फिर दरियावां की तरह तू वहेगा। टुट ना थी भी वाड़ा, ते टुट के तू छप्पड़ जा नहीं रह जाएगा, छोटा जा टोआ पानी का। ते जिथे पानी खड़ जाएगा उथे मुश्क मारेगा, उथे कीड़े मकोड़ेपन बन गए, उथे स्टैगनेशन है, रुकावट है। पर जेड़ा गुरु के गुणां दे विच तुरिया होया है, वो फिर भला करदा ही जाएगा। इनू फुन गुरु परमल सरस, सरस सारे रसां दा मालक है, दुनिया दे सारे रस देण वाला है। असीं पढ़दे हां, अनद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पा ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरस से। सारे रस ने गुरु ते गुरु की संगत दी शरणी विच। संत साजन भये सरस से, पूरे गुर ते जाने। जीवन दे सारे रस मिलणगे। कौन कहंदा बंदगी करन वाला उचाट हो जांदा है, बुझड़ हो जांदा ओदा जीवन। ओदा जीवन ऐसे रसां नाल भरपूर हुंदा है ते वो बुझड़ जीवन नूं भी रसां विच भर दिंदा है। वो कई करोड़ां प्यासियां दी प्यास बुझा दिंदा है। पर भगत नामदेव जी कहंदे पर इहदे लई ते परीक्षा बड़ी वड्डी देनी पैंदी है। इहदे लई ते गुरु दे शब्द दे हुक्म नूं इह ते अलूणी सिल चटना। ये रोड़ां की गुर करी विछाई वाला मार्ग गुरु नानक साहब महाराज जी, भाई गुरदास जी ये समझाउंदे इस मार्ग बारे। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लजै। वो अपने कुलों नूं दाग ना ला ली गुरु तो बेमुख होके। इस करके गुरु दे मार्ग ते तुरियां ही खुशबू है, गुरु तो टुटियां मुश्क है। गुरु तो टुटियां गंदगी है जीवन दे विच, बदफैलियां ने। गुरु तो टुटियां विकार ने। बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। ये जहरी जीवन है। फुन गुरु परमल सरस, करत कंचन परस। कि गुरु नूं स्पर्श कीतियां भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तिनेहा। मनूर वर्गा, मनूर किनू कहंदे आ? इट्टां दे भट्ठियां दे बाहर कुछ इट्टां दा जुड़वां जा समूह, कालियां होईयां इट्टां, डब खड़बियां, विंग टेडियां जियां, वो कट्ठियां जी सुटियां होंदियां ने, वो किसी काम दियां नहीं होंदियां। उहनूं मनूर आख्या जांदा है। जां लोहार दी दुकान दे विच जद वैल्डिंग की जाती है तो बड़ा सारा लोहा कट्ठा जा हो जाता है, जिहड़ा खराब जा काम दा नहीं होंदा, उहनूं मनूर उहनूं भी बाहर सुट दिंदा। लोहार कहंदा किसी काम दा नहीं। जिहड़ा हट्टी विच नहीं वरतिया जांदा लोहा मनूर वर्गा, उहनूं भी जे गुरु दा स्पर्श मिल जाए तो वह भी कंचन हो जाता है। जिहड़ा किसी दे काम दा नहीं है, जिहदी कोई कीमत नहीं है, जिहड़ा खोटा हो गया, जिहड़ा कच वर्गा बिल्कुल जिहदी कीमत नहीं। ते गुरु रामदास जी बाबत यही ते भट्ट जी कहंदे कच्चो कंचन भयो, शब्द गुर श्रवण है सुनियो। जे गुरु दे शब्द नूं सुन लिया जाए ते कच दी भी कीमत पै जांदी, कच्चे तो भी कंचन हो जाता है बंदा। कच्चो कंचन भयो, शब्द गुर श्रवण है सुनियो। बिकते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो। लोहो हो लाल, नदर सतगुर जत धारै। पाहण मानक करै, ज्ञान गुर कहो विचारै। काठो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। किड्डी बख्शिश ने कि मनूर तो कंचन करने वाले गुरु, कीमत पाउण वाले। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना। आड दाम को छीपरो होयो लाखीना। कोडी दा मुल नहीं पैंदा साडा, पर जे गुरु नाल स्पर्श करता जाए, जे गुरु नाल ये है इट तन लागै बाणियां, बाणी स्पर्श कर जाए, सुख होवै सेवक माणियां। इनू महाराज जी दी बाणी बार बार यही समझाउंदी है। बिकते अमृत होयो, जहर तो अमृतमय जीवन हो जाता है। हुण हसन अबदाल दी धरती ते
आही ते कुछ वली कंधारी वर्गियां ने कीता। अहंकार, अंदर दी क्रुखता कि ये किवें हो गया कि मेरा इत्थे ठाठा बागा मेरी तूती बोलदी है, ये कौन आया है? ये कौन गुरु नानक साहब के जिदे दुआले सारा पिंड इकट्ठा होया बैठा है? भाई मरदाना जी बई पानी, वली कंधारी कहंदा उस तो ही मंग पानी जिन्हें अपने दुआले इन्नी इन्नी दुनिया इकट्ठी की हुई है, मेरे कोल की लैण आया? सड़दा बलदा पिया ना अंदरों, तपिया पिया। ये की हो गया कि अज तो पहला तो सारा पिंड मेरे कोल इकट्ठा होंदा है, ये की हो गया? यख लखत एक खिंड दे विच सारे उहदे कोल बैठे हुए ने, जा उहदे कोल मंग लै पानी, वो देगा। जिहदे कोल सारे बैठे हुए ने मेरे कोल की? महाराज कहंदे कोई नहीं मरदानिया, कोई नहीं, सबर करीदा, दोबारा मंग लै उन्होंने, फिर प्यार नाल कह दे कि भाई दे दो पानी, की बिगड़ जाना है? 3 वारी गया नहीं, फिर महाराज जी ने कढ़ लिया पानी का चश्मा, फिर ठीक है। फिर क्योंकि तत् निरंजन जोत सभाई सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कोई भेद ना जानो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। इको ही भेद, इको ही चीज, कोई भेद नहीं। सड़ बल गया, पत्थर सुटिया, उथों पत्थर सुट दिता। हे सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा झलै गुरु दी झाला। कौन झल सकता? वड्डे वड्डे सिद्ध जोगी ने जिन्हां ने 84 आसन सिद्ध किए हुए। अज 2-4 आसन सिद्ध के सिख के ना असी कहने जी असी सर्टिफाइड, असी योगी हो गए। गुरु नानक साहब जिन्होंने मिलन गए है, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टि आई 84 सिद्ध गोरखाद जिन्होंने 84 आसना सिद्ध किया होया। एक अद्धे नहीं, मन अंतर गणती वरताए। वो भी नहीं चल सके गुरु की झाल। वड्डे वड्डे दस्तगीर पीर नहीं झल सकिया गुरु की झाल, बहलोल नहीं झल सकिया गुरु की झाल। जिथे गुरु साहब बैठे बगदाद की धरती ते, बगदाद जिस सिले ते बैठे बहलोल सुनना आउंदा रहा। महाराज जी नूं कहंदा सच्चे पातशाह ये जो तुसी गा रहे हो पहला नहीं सुनिया, पर जो भी है बड़ा सुकून ते बड़ा आनंद मिलता है। कई दिन वो सुनता रहा। प्रोफैसर पूरन सिंह की नावल किताब है छोटी जी, चुप प्रीत दा शहनशाह व्योपारी, बड़ी कमाल की वो लिखत है, पढ़न वाली है। उहदे विच शेख उहदा बहलोल का जिक्र किया होया। जिस दिन गुरु नानक साहब महाराज जी जान लगे ना, पैरों च पै गया, डिग गया, मत्था गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों च रखिया, महाराज जी ने सिर ते हाथ रखिया। दीन दुनी सवरगी, सारे नजरिए बिकते अमृत होयो, बिक तो अमृत कर दिता। शब्द सतगुर मुख भणियो, लोहो हो लाल नदर सतगुर जद धारै, पाहन मानक करै ज्ञान गुर कहो विचारै। काठो श्री खंड सतगुर कीओ, अक दी लकड़ जिदी कोई कीमत, अक दा बूटा जिदी कोई कीमत नहीं, ते गुरु साहब ने श्री खंड करता, चंदन बेशकीमती करता। अगर चंदन बनाता, काठो श्रीखंड सतगुर कीओ, दुख दरिद्र तिनके गए। फिर यही तो है, सतगुरु चरण जिन परसिया, से पश प्रेत सुर नर पए। तो गुरु नानक साहब जान लगे, अंदर हुण बख्शिश हो गई ना, गुरु नानक साहब ने नदरे नायत करती। बहलोल कहंदा महाराज इको ही बचन किया, इको ही बचन किया, जां तां रह जाओ नहीं तां मैनू नाल लै जाओ। प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदे ये बहलोल ने अपने मुंह तो उचारिया, बाबा जां तां रह जा नहीं ते मैनू नाल लै जा। हुण नहीं मैं रह सकदा, हुण नहीं रह सकदा। माधो जल की प्यास ना जाए, हुण ये प्यास नहीं बुझ सकती तेरे बिना। जल मैं अगन उठी अधकाए, अत तो अत नाम बाणी सुनन दी अंदर तलब पैदा हुई है बाबा तुहाडे सामने बह के। कमाल है। जां कहंदा मेरी सवासां दी डोर वड्ड के जाओ, फिर मेथों नहीं रहा जाना तुहाडे बिना। महाराज कहंदे वे बहलोल शरीरां नाल नहीं जोड़न आए, असी शरीरां नाल नहीं जुड़ना, शब्द दी प्रीत करो, अंतम वेले तुहाडे अंग संग होवांगे। प्रोफैसर पूरन सिंह ये लिखदे। गुरु नानक साहब ने आख्या, जिस सिला जिस पत्थर उत्ते बैठ के गुरु नानक साहब ने बहलोल दे सिर ते हाथ रखिया सी, प्रोफैसर पूरन सिंह लिखदा 60 सर्दियां वो पत्थर नाल लग के बैठा रहा। इत्थे पत्थर पूजा ना कहो, उहदी भावना अंदर दी 60 ते 60 सर्दियां साल च एक बारी सर्दियां दी 60 साल
ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ, ਹਲਚਲ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਬਗਦਾਦ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਲੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਐ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਟੀਆ ਦੀ, ਆ ਛੱਪਰ ਦੀ, ਕੋ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਬਹਿਲੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫਕੀਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਨੇ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਹੈ, ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਇਓ, ਧਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟ ਕੰਤ ਸਦ ਦੁਆਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਈਐ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ, ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦੁਆਰ ਜਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਿ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ ਹਟ ਕੇ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰਨਾਮ, ਗੁਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਤ ਹੋ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ, ਬਿਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਹਾਈਐ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਉਰ ਧਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ। ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਵੀ, ਨਿਰਵਾਣਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। माया तो निर्लेप, माया तो निर्लेप है कि जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई न साणे। निर्लेप, नाम निर्वाण निधान, यही अवस्था। वली कंधारी ने पत्थर सुटिया, महाराज ने कला पत्थर उत्ते नहीं पंजा छापिया कि गुरु ने दसिया जिदे अंदर गुरु दे शब्द दा सबर संतोख होएगा ना, भावें पत्थर वर्गा हिरदा भी आ जाए, वो हिरदे ते भी उस बंदे दी बंदगी दा इंप्रैशन छप जाएगा, गुरु दे शब्द दा प्रभाव छप जाएगा उस पत्थर वाले हिरदे ते भी। गुरु दी कृपा दा, गुरु दे समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। अकला पत्थर ते हाथ नहीं, एक पत्थर वर्गे हिरदियां नूं भी मोम करने वाला गुरु है। यह है गुरु खुशबू है। नाम निर्वाण निधान हर खजाना है, खजाना है बेशुमार अथा अगनत अतुल है, इस खजाने का कोई अंत नहीं पाया जा सकता।
इस करके हर उर धरो, इस खजाने नूं हिरदे विच वसाइए। जुबान नाल बहुत बोल लिया, बड़ा गा लिया ते आ लिया, हिरदे नाल गुरु नानक साहब जी जप सकीए इस बाणी नूं। गुरु गुर गुर कर हो, गुरु हर पाईए। ते भट्ट जी कहंदे जिहड़ा गुरु करेगा वो गुरु राही पार ब्रह्म परमेश्वर उस हरि दे विच मिल जाएगा। गुरु समर्थ है, गुरु मिलाउण वाला है। इत्थे अज पदी दी समाप्ति है। विचार करदे हां बेअंत भुलां गलतियां आप संगत गुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, आप संगतां दा करोड़ां वारी धन्नवाद है। सिंह साहब होरां दा धन्नवाद, प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद, समुचे तौर पर सारियां दा धन्नवाद। सतगुरु जी भली करन। दास पिछले समय तो 1 साल तो सीसगंज मैगजीन की सेवा भी निभा रहा है। आप सारियां संगतां नूं बेनती है भाई अपने घरां विच ये साडा जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का सब तो एक निवेकला ते पुरातन लिटरेचर है, इनू घरां घरां दे विच मंगवाओ ते पढ़ो। सतगुरु जी भली करन। फतेह बुलाओ जी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।